জোয়ারে ভাসাবে দোহারে, বাঁধন খুলে দাও 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 দাও, ভুলিব ভাবনা পিছনে যাবো না, পাল তুলে দাও 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 দাও। জোয়ারে ভাসাবে দোহারে, বাঁধন খুলে দাও 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 দাও, ভুলিব ভাবনা পিছনে যাবো না, পাল তুলে দাও 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 দাও। পাগল হে নারী ভুলাও দিক বিধি, পাগল হে নাবিক ভুলাও দিক বিধি, পাল তুলে দাও 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 দাও। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোহারে, বাঁধন খুলে দাও 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 দাও, ভুলিব ভাবনা পিছনে যাবো না, পাল তুলে দাও 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 দাও। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোহারে, বাঁধন খুলে দাও 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 দাও, ভুলিব ভাবনা পিছনে যাবো না, পাল তুলে দাও 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 দাও। সাহস করে কোনোদিন অমিতকে বলতে পারেনি লাবণ্য তার মনের কথা। অমিত সোজাসাপটা মানুষ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তার জীবনে বল বিয়ারিং আর স্প্যানারে ধ্যান জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা হয়েছিল ছেলেবেলায়, সেই সহজ পাঠের সময়। ব্যাস সেই শেষ। লাবণ্য ভাবতেই পারে না এইরকম বাঙালিও পৃথিবীতে থাকতে পারে। কিন্তু কিন্তু হলে কি হবে, এই আপাদ মস্তক আনরোম্যান্টিক মানুষটিকে কখন যে ভালো লাগতে শুরু করেছে তা সে নিজেও বোঝেনি। দার্জিলিং থেকে তারা ফিরেছে এই মাস তিনেক। এরই মধ্যে 3 বার দেখাও হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। কিন্তু নারীর মন বোঝার সূক্ষ্মতা যে অমিতের মধ্যে নেই তা সে ভালোই বুঝেছে। একদিন 2-1 কথায় অমিত জানায় যে কোম্পানি তাকে কয়েক মাসের জন্য দিল্লি পাঠাচ্ছে। তাই বেশ কয়েক মাস দেখা সাক্ষাৎ সব বন্ধ। কিন্তু কিন্তু এই অল্প কদিনের কথা অজান্তেই যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে লাবণ্যর। তাই তাই এই কথা শুনে সে থাকতে পারে না, চোখ ভরে আসে জলে। কফি হাউস থেকে ছুটতে উঠে যায় সে, আর অবাক হয়ে বসে থাকে অমিত। তবে তবে সে যা ভাবছে তাই কি চলছে লাবণ্যের মনে? না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, ত্যাগিলে আসে হাতে দিবসে সে ধন হারাইছি, আমি পেয়েছি আধার রাতে, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
ফেলেছি অশ্রুজল বীণাবাদিনী শত দলে করেছে সে তরমল মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসে উঠেছে ঝলকে ঝলকে শান্ত হাসি করুণ আলোকে ভাতিছে নয়ন পাতে না চাহিলে যারে পাওয়া যায় না চাহিলে যারে পাওয়া যায় ত্যাগিলে আসে হাতে দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি পেয়েছি আধার রাতে না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে ধর্মরিয়ে উঠে বসে অমিত। একটু আগে যে লাবণ্যর গলা পেয়েছিল তাকে সত্যি লাবণ্যকে সত্যি ভালো হয়ে উঠেছে। কিন্তু অমিত দেখে যেভাবে শুয়েছিল ঠিক সেইভাবেই নিষ্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে তার প্রাণের লাবণ্য। উঠে দাঁড়ায় সে, কিছু না ভেবে লাবণ্য স্টাডির কাছে দাঁড়ায় সে। স্টাডির এক কোণে পড়ে আছে গীতবিতান। অমিতের মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দিনে লাবণ্যর বাবার দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জ, রেওয়াজ করতে হবে লাবণ্যর সাথে। অমিত সেদিন গান করতেই চোখেতে অমিতের দিকে ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল লাবণ্য। চোখ বন্ধ করলে লাবণ্য সেই চাহিনি আজও ফিরে আসে অমিতের মনে। গীতবিতানের পাতা উল্টায় অমিত, তার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে গীতবিতানের পাতা। বইখানি নিয়ে এসে আলতো করে বসে লাবণ্যর পাশে। দূরের জানলা থেকে দেখে মনে হয় যেন কবিগুরু স্বয়ং নিজে এসে বসেছেন তার প্রেয়সীর কাছে। দূরে টিম টিম করছে আলো, অমিতের কণ্ঠে ভেসে আসে সুর। बिना रवि ठाकुर के गान का स्मरण किए हुए ये जो इतिहास है हमारा ये अपूर्ण है। तो कलकत्ता जीपीओ जो अपने 250 वर्ष को मना रहा है, उसमें रवि ठाकुर के गान का जो ये आज समारोह हुआ वो बहुत ही हमारी विरासत से मिला हुआ है। रवि ठाकुर स्वयं चिट्ठी और जो डाकघर है उससे बहुत ही जुड़े हुए थे।
उनके शिलाई दहों का जो एक डाकिया था, गगन नाम था उसका, गगन हरकारा, उसके बारे में रवि ठाकुर ने भी लिखा है। और वो गगन हरकारा तो एक बाउल था। उसने ही एक बहुत अच्छा गान लिखा है, द्वारे द्वारे में जिसे ढूंढता हूँ, जो मेरे मन में अभी नहीं मिला, ऐसा कुछ उसका बाउल का गीत है, जो एक तरह से वैराग्य भी दिखाता है और जो हमारी खोज हमेशा चलती रहती है वो भी दिखाता है। तो ये बहुत ही आज सूटेबल था कि इस संध्या को, जब लेटर बॉक्सेस पे स्पेशल कवर जो निकला है, लेटर बॉक्स भी एक तरह से हमारे डिपार्टमेंट की पहचान है और हमारी बहुत शानदार विरासत है। तो आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के गान पर आज जो ये हुआ है, गान का जो उत्सव हुआ है, सचमुच में बहुत ही अपूर्व था और बहुत ही यथेष्ट भी था। जो डाकघर की गरिमापूर्ण जो हमारी विरासत है, उसके साथ वो विरासत निश्चय ही जुड़ी हुई है। सर, क्या बोलना चाहेंगे कि अभी जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, नए नए माध्यम आए हैं, जैसे व्हाट्सएप बोलिए, फेसबुक बोलिए, ये जो उसका जो विकास हुआ है, उसके बावजूद जो पोस्ट है उसका एक अलग ही उसका मतलब कि एक तो हेरिटेज है और उसका अलग ही एक तो फीलिंग्स है लोगों के दिमाग में। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे एक सदियों पुराना वट वृक्ष जो है हमेशा कायम रहता है और उसमें जो घोंसला बनाते हैं पशु पक्षी सब, उनका एक सहारा होता है। डाकघर भी जो हमारे कलकत्ता जीपीओ है, वो एक विशाल वट वृक्ष के समान है और सदियों से समय भले बदल जाए, लेकिन डाकघर की सेवाएं भी साथ साथ में बदलती रहती हैं। एक चीज़ नहीं बदलता, वो ये नज़रिया कि हमें लोगों के घरों तक उसके लिए, उसके उपयोगी होने के लिए कुछ न कुछ तो करते रहना है। लोगों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, लेकिन जो हमारा प्रयास है इन ज़रूरतों को पूरा करने का, वो नहीं बदलता। तो हम अलग अलग रूप में, अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके लोगों के घरों तक पहुंचते ही रहते हैं। सर, इसका मॉडर्नाइजेशन अभी जो जो एज का डिमांड है, तो उसके लिए आप लोग क्या कुछ सोचे हैं? मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल सर्किल में 13,000 मोबाइल फ़ोनों के द्वारा गांवों और शहरों में डिलीवरी होती है और डाक सेवाएं दी जाती हैं। इस जीपीओ के अंदर 300 से ज़्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं, जहां आपका काम रात दिन चल रहा है। और हमारे पूरे राज्य में करीब 6,000 के करीब कंप्यूटर हैं, जिससे हम सेवाएं देते हैं। इंटरनेट और सबके द्वारा आज सेवाएं दी जाती हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपना लिया है और IT 1 से होते हुए अब हम IT 2 में प्रवेश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारे काम का एक मूल आधार है। सर, इस शुभ मौके पर क्या बोलना चाहेंगे जो डाक का जो ग्राहक है और जो यहाँ का जो सेवा लेते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे और क्या मैसेज देंगे जो इससे जुड़े हुए हैं, इतने सारे आपके जो कर्मचारी हैं? 250 वर्ष से हम कायम हैं, क्योंकि जब तक लोगों की कोई भी आवश्यकता है, कभी खत लिखना है, कभी ई-कॉमर्स के लिए सामान मंगवाना है, कभी उन्हें अपने सामान को जो बनाते हैं उसे दुनिया भर में उसका निर्यात करना है, कभी आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, अपना जमा पैसा जो है थोड़ा सा डाकघर में डाल के वो जमा करना है, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। जब तक ये ज़रूरतें लोगों में आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, हम उसी हिसाब से अपना काम बदल बदल के लोगों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।